ओम शांति। आज के बाबार 22/12/2020 मुरली। आजकेर मुरलिर विशेष पॉइंट बाबा बोलছেন बच्चे তোমরা এই সময় যোগেশ্বর হয়েছো কেন স্বয়ং ভগবান তোমাদেরকে যোগ শেখাচ্ছেন। তো তোমরা যোগেশ্বর বাবার বাচ্চা মাস্টার যোগেশ্বর। তারপরে আজকে বাবা বলছেন যে এখন তোমরা জ্ঞান শিখছো তো জ্ঞানেশ্বর হয়েছো, তারপরে তোমরা সত্যযুগে রাজেশ্বর হবে, রাজারও রাজা হবে। তারপরে আজকে বাবা বলছেন যে এটা হচ্ছে গড ফাদারলি ইউনিভার্সিটি। এখন বাবা আমাদের সুপ্রিম টিচার হয়েছেন, আমাদের অবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট। আমাদেরকে বাবা বলছেন বাচ্চে আমি তোমাদেরকে পড়িয়ে সত্যযুগের লক্ষ্মী নারায়ণ বানাচ্ছি, তো আমি তোমাদের অবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট। তোমাদের এখন লক্ষ্য হচ্ছে মানুষ থেকে দেবতা হওয়া। বাবা বলছেন যে যাদের নিশ্চয় হবে যে আমরা নর থেকে নারায়ণ হব এবং তারা নিশ্চয় অটোমেটিক ভক্তি ছেড়ে দেবে, কিন্তু যাদের নিশ্চয় নেই তারা তো ভক্তি করবে। বাবা বলছেন সব অঙ্গ থেকে সব থেকে বেশি চোখ হচ্ছে ক্রিমিনাল, তো এই ক্রিমিনাল দৃষ্টিকে তোমাকে ঠিক রাখতে হবে। বাবা বলছেন ড্রামাতে যা কিছু হচ্ছে একদম অ্যাকুরেট হচ্ছে, তো এখানে কাউকে এই পরামর্শ দেওয়া দরকার নেই যে ভক্তি ছাড়ো। তারপরে আজকে বাবা বলছেন কি যখন বুদ্ধিতে জ্ঞান আসবে তখন অটোমেটিক ভক্তি ছুটে যাবে। তারপরে আজকে বাবা বলছেন যে বাবাকে ইয়াদ করার জন্যে কোনো একটা বিশিষ্ট জায়গায় বসা দরকার নেই। প্রথমে নিজেকে আত্মা ভাবতে হবে যে আমি অতি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম এক আত্মা, আমি ছোট্ট একটা বিন্দু স্বরূপ। তারপরে বাবা বলছেন এখন তোমরা জানো যে পুরনো দুনিয়া শেষ হতে যাচ্ছে, এই জন্য এখন এই দুনিয়া থেকে পুরো বৈরাগ্য নিয়ে আসতে হবে। সংসার জীবনের থেকে বাবার সঙ্গে পুরো মনের যোগ রাখতে হবে এবং শরীর নির্বাহ অর্থে কিছু কর্ম তো করতেই হবে। তো এইভাবে বাবা অনেক কিছু শিক্ষা আজ আমাদের দিয়েছেন। বিশেষ বাবা বলেছেন বাচ্চে তোমাকে চলতে ফিরতে বাবাকে ইয়াদ করতে হবে, বারবার দেহি অভিমানী হতে হবে আর এই দৃষ্টিকে খুব সিভিল বানাতে হবে। এই চোখই হচ্ছে সবথেকে বেশি ক্রিমিনাল, তো এটাকে তোমরা সিভিল বানাও, সত্যযুগে কারো ক্রিমিনাল দৃষ্টি হবে না। তারপরে আজকে বাবা বলেছেন যে এখানে কলিযুগে মানুষের কত অকাল মৃত্যু হচ্ছে, চারিদিকে মৃত্যুর খেলা চলছে, কিন্তু সত্যযুগে সবারই পূর্ণ আয়ু থাকবে, সেখানে অকাল মৃত্যু কারোই হবে না। তোমরা পূর্ণ সুখ পাওয়ার জন্যে সত্যযুগে যাওয়ার জন্য তোমরা এখন পুরুষার্থ করছো, তোমাদের অনেক সুখ থাকবে সত্যযুগে। তো আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনবো। মিঠে बच्चे तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है, उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। বাবা বলছেন যে তুমি এখন বাবা দ্বারা দিব্য দৃষ্টি পেয়েছো, তো এই দিব্য দৃষ্টি দ্বারাই তুমি আত্মা এবং পরমাত্মাকে দেখতে পারবে। আজকের প্রশ্ন হচ্ছে ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे। বাবা বলছেন যে বাচ্চারা ড্রামা রাজকে বুঝে নিয়েছে তারা কি একটা পরামর্শ কাউকে দেবে না। উত্তরে বাবা বলছেন जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, वह कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा हैं, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। बाबा बोलছেন যে যাদের বুদ্ধিতে ড্রামার জ্ঞান একদম অ্যাকুরেট আছে তো তারা কাউকে ভক্তি ছাড়ার পরামর্শ দেবে না, কেন তারা জানে কি সে আত্মার মধ্যে যখন জ্ঞান ভালো করে বসে যাবে এবং বুঝে নেবে যে আমি আত্মা এবং আমি এখন বেহদের বাবা থেকে সত্যযুগের বর্ষা নেব, তখন অটোমেটিক তার ভক্তি অটোমেটিকই সে ছেড়ে দেবে, তো তাকে জোর করে ছাড়ানোর কোনো দরকার নেই। ओम शांति। अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं
क्योंकि यह तो बच्चे जानते हैं एक ही बेहद का बाप है जिसको रूह कहते हैं। सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। বাবা বলছেন তোমার আত্মার যে সাইজ আমার আত্মারও সেম সাইজ, কিন্তু যেহেতু আমি জন্মমৃত্যু থেকে আলাদা, আমি কোনো রকম সুখ দুঃখ ভোগ করি না। আমি তোমাদের মতন সৃষ্টিকাল চক্রে 84 জন্ম নেই না। আমি জন্ম মরণ রহিত। এই জন্যই আমি পরম আত্মা, এই জন্যে আমাকে পরমাত্মা বলা হয়। तो परम आत्मा माना परमात्मा, यह भी समझाया गया है। मूंझना नहीं चाहिए, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुमने सुना था। आत्मा ही सुनती है ना। आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, इतना है जो इन आँखों से देखा नहीं जाता। बाबा आज के आत्मार সাইজের কথা বলছেন যে এত সূক্ষ্ম যে আত্মাকে এই চর্মচক্ষু দ্বারা দেখা যায় না। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आँखों से देखा होगा। বাবা বলছেন এমন কোনো মানুষ নেই যে আত্মাকে এই চোখে দেখেছে। देखने में आती है परंतु दिव्य दृष्टि से। বলছে হ্যাঁ আত্মাকে দেখা যায় কিন্তু दिव्य दृष्टि द्वारा। सो भी ड्रामा प्लान अनुसार। अच्छा समझो कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है जैसे और चीज़ देखने में आती है। भक्ति मार्ग में भी कुछ साक्षात्कार होता है, तो इन आँखों से ही वह दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। বাবা বলছেন যে ভক্তি মার্গে কিছু কিছু ভক্ত কিছু সাক্ষাৎকার করে এবং তারা চর্মচক্ষু দ্বারাই দেখে, তো সেই সময় তারা দিব্য দৃষ্টি পেয়ে যায়, মানে বাবার দ্বারা দিব্য দৃষ্টি পায়, তাই চর্মচক্ষু দ্বারা চৈতন্য কিছু দেখছে। आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलती है जिससे देख सकते हैं, परंतु ध्यान में तो भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। বলছেন ভক্তি মার্গে যখন চরম ভক্তি করে তখন সাক্ষাৎকার হয়। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी, वैकुंठ तो था नहीं। 500-600 वर्ष हुआ होगा, उस समय वैकुंठ तो थोड़े ही था। বাবা বলছেন যে মীরা সবসময় সাক্ষাৎকার করতো যে আমি কৃষ্ণের সঙ্গে ডান্স করছি, রাস করছি, সব সময় কৃষ্ণকে দেখতে পারতো। তো বাবা বলছেন তখন তো স্বর্গ ছিল না, তো মীরার তো হয়তো 500-600 বছর হয়েছে, তো সে তো সাক্ষাৎকারে কৃষ্ণকে দেখতো, বাস্তবে তো সত্যযুগ ছিল না, বৈকুণ্ঠ তখন ছিল না। जो पास्ट हो गया है वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। বলছে যেটা অতীত হয়ে গেছে ওটাকে দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দেখা যায়, যেটাকে सिक्स सेंस বলা হয়। जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्तिमय हो जाते हैं तब दीदार होता है, परंतु उनसे मुक्ति नहीं मिलती। বলছে ভক্তি মার্গে যখন ভক্ত একদম ভক্তির চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, একদম পরমাত্মার প্রেমে লভলীন হয়ে যায়, তখন সে সাক্ষাৎকার করে, কিন্তু সেই সাক্ষাৎকার দ্বারা কারো মুক্তি হয় না। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है। বলছেন মুক্তি জীবন মুক্তির রাস্তা পথ ভক্তি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। भारत में कितने ढेर मंदिर हैं, शिव का लिंग रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते हैं, छोटा भी रखते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं जैसी आत्मा है वैसे परम पिता परमात्मा है। साइज सबका एक ही है, जैसे बाप वैसे बच्चे। আবার বাবা বলছেন যে তোমার আত্মার যে সাইজ যে আকার আমারও সেম সাইজ সেম আকার, কিন্তু আমি যেহেতু জ্ঞানে গুণে শক্তিতে পরম তাই আমাকে परमात्मा বলা হয়। आत्माएं सब भाई भाई हैं। आत्माएं इस शरीर में आती हैं पाठ बजाने।
यह समझने की बातें हैं। यह कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं हैं। ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक बाप ही समझाते हैं। तो पहले पहले समझाने वाला बेहद का बाप निराकार ही है। बाबा भक्ति मार्गेर दंत कथा बाबा शोनान ना, बाबा तो ज्ञान मार्गेर कथा शोनान। उनके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकते। कहते हैं वह तो सर्वव्यापी है। आबार भक्ति मार्गे बोले दिए छे जे भगवान सर्वव्यापी। यह कोई राइट नहीं है। बाप को पुकारते हैं, बहुत प्यार से बुलाते हैं, कहते हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। मेरा तो आप दूसरा न कोई। तो जरूर उनको याद करना पड़े। वह खुद भी कहते हैं हे बच्चों, आत्माओं से ही बात करते हैं ना। बाबा निजेई आत्मादेर संगे कथा बोलছেন, निजेर सन्तानेर संगे कथा बोलছেন। हे बच्चे करे कथा बोलছেন। बहुत काल से तुम आत्माएं अलग रहती हो, जो ही फिर इस समय बाप के पास आई हो, फिर से अपना राजयोग सीखने। यह टीचर सर्वेंट है। टीचर हमेशा ओबिडियंट सर्वेंट होते हैं। বলছেন আমি টিচার হয়ে এসেছি এবং আমি অবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট। তো টিচার স্টুডেন্টদের জন্য অবিডিয়েন্ট সার্ভেন্টই থাকেন। টিচারের কর্তব্য হচ্ছে স্টুডেন্টকে পড়ানো, তাদেরকে যোগ্য বানানো। तो बाप भी कहते हम तो सब बच्चों का सर्वेंट हूँ, तुम कितना हुज्जत से बुलाते हो। हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। सब हैं भक्तियाँ, कहते हैं हे भगवान आओ हमको फिर से पावन बनाओ। पावन दुनिया स्वर्ग को, पतित दुनिया नरक को कहा जाता है। तो यह सब समझने की बातें हैं। यह कॉलेज अथवा गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। बाबा बोलছেন আমি এসে যে स्कूल खुलेছি तार नाम होच्छे गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। तो एर एम ऑब्जेक्ट होच्छे मानुष थेके देवता करा। बच्चे निश्चय करते हैं हमको यह बनना है। जिसको निश्चय ही नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना। बोलছে যার নিশ্চয়ই হবে না সে তো স্কুলে বসবেই না। তো এখন তোমাদের বুদ্ধিতেই লক্ষ্য আছে যে আমরাই लक्ष्मी नारायण हबो। हम बैरिस्टर व डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे ना। निश्चय नहीं होगा तो आएंगे ही नहीं। तुमको निश्चय है हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। यह सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा है। वास्तव में यह है पढ़ाई, परंतु इनको कथा क्यों कहते हैं, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी, पास्ट हो गई। पास्ट को कथा कहा जाता है। यह है नर से नारायण बनने की शिक्षा। बच्चे दिल से समझते हैं नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। बाबा बोलছেন যে এটাই হচ্ছে সত্যনারায়ণ হওয়ার কথা। তো বাবা বলছেন যে কথা কেন বলা হয়, যেটা অতীত হয়ে যায় সেটাকেই গল্প বলা হয়। তো বাবা 5000 বছর আগেও তোমাকে এই গল্প শুনিয়েছিল এবং তোমরাই জানো যে আমরা সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণ ছিলাম। তো এখন আবার আমাদেরকে হতে হবে। তো এই জ্ঞানই হচ্ছে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার শিক্ষা। तो बच्चे दिल से समझते हैं नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो गुण है वह मनुष्यों में नहीं है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। मनुष्य देवताओं के आगे नमन करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, फिर अपने को कहते हैं हम पापी नीच हैं। বলছে যে মানুষ দেবী দেবতাদের কাছে গিয়ে নমন করে যে আপনারা সর্বগুণ সম্পন্ন, 16 কলায় সম্পূর্ণ, আর আমরা পাপী नीच। मनुष्य ही कहते हैं, देवताओं को तो नहीं कहेंगे ना।
देवताएं थे सतयुग में, कलयुग में हो न सके। বলছেন যে দেবতারা সত্য যুগে হবে, কলিযুগের মনুষ্যকে দেবী দেবতা বলা যাবে না। परंतु आजकल तो सबको श्री श्री कह देते हैं। श्री माना श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही बना सकते हैं। श्रेष्ठ देवता सतयुग में थे, इस समय कोई मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। तुम बच्चे अभी बेहद का संन्यास करते हो। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इन सब से वैराग्य है। वह तो है हठ योगी सन्यासी, घर बार छोड़ निकले, फिर आकर महलों में बैठे हैं। बाबा বলছেন এখনকার হঠযোগী সন্ন্যাসীরা আগে তো তারা ঘর সংসার ছেড়ে দিয়েছে, বন জঙ্গলে ঘুরলো, আশ্রমে গেল, তারপরে নিজেরা এক একটা আশ্রম খুলে এখন নিজেরাই মহলের মতন বাড়িতে আছে। नहीं तो कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी लगता है, कुछ भी नहीं। বলছে যদি একটা কুটির বানানো হয় তো সেখানে কোনো খরচা লাগে না, কিন্তু তারা এখন বড় বড় মহলে আছে। एकांत के लिए कुटिया में बैठना होता है, न कि महलों में। বলছে একান্ত সাধনার জন্য তো কুটিরে বসতে হয়, মহলে তো নয়। बाबा की भी कुटिया बनी हुई है, कुटिया में सब सुख है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। বলছে তোমরা জানো যে ড্রামাতে যা কিছু পাস্ট হয়ে গেছে সেটা আবার एक्यूरेट रिपीट হবে। इसलिए किसी को भी ऐसी राय नहीं देनी है कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे हम आत्मा हैं। हमको अब तो बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बेहद के बाप की जब पहचान होती है तो फिर हद की बातें खत्म हो जाती हैं। বলছে যখন বেহদের বাবার পরিচয় সবাই জেনে যাবে বা বাবার সঙ্গে যাদের বুদ্ধি যোগ লেগে যাবে তখন অটোমেটিক এই পুজো পাঠ বন্ধ হয়ে যাবে। তার আগে কাউকে পুজো পাঠ বন্ধ করা বলার দরকার নেই। तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाना है। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है। जैसे भक्ति में भी कोई कोई बहुत नौधा भक्ति करते हैं, नियम से रोज जाकर दर्शन करते हैं। देहधारियों के पास जाना वह सब है जिस्मानी यात्रा। বাবা বলছেন যে ভক্তি মার্গেও কিছু কিছু ভক্ত এমন আছে যে রোজ সকাল সকাল চান করে তারা মন্দিরে যাবেই এবং নিজের ইষ্টদেবকে দর্শন করবেই। তো বাবা বলছে যে যাকে দর্শন করছে সে তো দেহধারী, তো দেহধারীর সঙ্গে যোগ বুদ্ধিযোগ লাগানো মানা এটা দেহের यात्रा, जिस्मानी यात्रा। तो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाने पड़ते हैं, यहाँ कुछ भी धक्का नहीं खाना है। आते हैं तो समझाने के लिए बिठाया जाता है, बाकी याद के लिए कोई एक जगह बैठ नहीं जाना है। भक्ति मार्ग में कोई कृष्ण का भक्त होता है तो ऐसे नहीं चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते। इसलिए जो पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं कहते हैं कृष्ण का चित्र घर में रखा, फिर तुम मंदिरों में क्यों जाते हो। বাবা বলছেন কি যেমন কেউ কৃষ্ণের ভক্ত আছে তো সকালবেলা কৃষ্ণের পুজো করে নিয়েছে, তাহলে কি সারাদিন আর সে কৃষ্ণকে মনে করবে না? তো যে ভক্ত হবে তার তো সারাদিন কৃষ্ণের কথা মনে পড়বে। তো ঠিক সেরকম বাবা বলছে তোমরাও বাবার ঘরে আসো, মুরলি শোনো, সকালে অমৃতবেলা উঠে যোগও করো এবং সারাদিন চলতে ফিরতে বাবাকে ইয়াদ করো। বাবা বলছেন যারা কৃষ্ণ ভক্ত হয় তাদের বাড়ির লোকেরা তাদেরকে বলে যে তুমি বাড়িতেই তো কৃষ্ণকে পুজো করে নিচ্ছ, তাহলে আবার মন্দির যাওয়ার কি আছে। कृष्ण के चित्रों की पूजा तुम कहाँ भी करो, अच्छा चित्र न रखो, याद करते रहो। एक बार चीज़ देखी तो फिर वह याद रहती है। तुमको भी यही कहते हैं। शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते हो,
यह तो है नई बात। শিব বাবা কো कोई भी जानते नहीं। বাবা বলছেন বাবাকে তুমি ঘরে বসেই স্মরণ করতে পারো, তার জন্য তোমাকে এটা না যে এদিকে ওদিকে ঘুরতে হবে। नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं, कह देते हैं सर्वव्यापी। বলছে ভগবানের নাম কি, রূপ কি, দেশ কি, ধাম কি মানুষ জানেই না, আর বলে দেয় ভগবান सर्वव्यापी। आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जाता ना। बाबा बोलছেন आत्माके परमात्मा बोला जाबे ना। आत्मा को बाप की याद आती है, परंतु बाप को जानते नहीं तो समझाना पड़े 7 रोज। फिर रेजगारी पॉइंट्स भी समझाई जाती है। बाप ज्ञान का सागर है ना, कितने समय से सुनते आए हो, क्योंकि नॉलेज है ना। समझते हो हमको मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज मिलती है। बाप कहते हैं तुमको नई नई गुह्य बातें सुनाते हैं। मुरली तुमको नहीं मिलती है तो तुम कितना चिल्लाते हो। বাচ্চাদের মুরলি থেকে এত প্রেম, এত ভালোবাসা যে একদিন যদি মুরলি না পায়, তো যেমন ছোট বাচ্চারা দুধ না পেলে চেঁচায় না, সেরকম যারা মুরलीधर বাচ্চারা তারা मुरली ना পেয়ে তারা কষ্ট পায়। तो बाप कहते तुम बाप को याद करो, मुरली पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो। पहले पहले तो यह याद करना है मैं आत्मा हूँ, इतनी छोटी बिंदी हूँ। বলছেন যে যদি কোনো দিন মুরলি পাচ্ছ না তো কষ্ট পাও না, বাবা তো মুরলিতে কি বলছে যে বারবার নিজেকে আত্মা ভাবো। তো অভ্যাস করো যে আমি একটা সূক্ষ্ম আত্মা, ছোট্ট আত্মা এই ভ্রকুটির মধ্যে বসে আছি এবং আমি পুরো শরীরকে পরিচালনা করছি, এরকম আত্মচিন্তন করো যে এবার খুব তাড়াতাড়ি নিজের হিসাব কিতাব মানে শোধ করে আমাকে আমার আসল বাড়ি ফিরে যেতে হবে। तो आत्मा को भी जानना है। कहते हैं इनकी आत्मा निकल दूसरे में प्रवेश किया। हम आत्मा ही जन्म लेते लेते अब पतित अपवित्र बने हैं। पहले तुम पवित्र गृहस्थ धर्म के थे, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, फिर दोनों ही अपवित्र बने, फिर दोनों पवित्र होते हैं, तो क्या अपवित्र से पवित्र बने। বাবা বলছেন যে লক্ষ্মীনারায়ণ তারা গৃহস্থ জীবনেরই ছিল, তারপরে ধীরে ধীরে তারা অপবিত্র হলো, আবার এখন অপবিত্র থেকে তাদেরকে পবিত্র হতে হবে। बाप बैठ समझाते हैं कैसे तुम पवित्र थे, फिर वाम मार्ग में जाने से अपवित्र बने हो। पुजारी को अपवित्र, पूज्य को पवित्र कहेंगे। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में है। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे उन्हों को राज्य मिला, यह तुम जानते हो, और कोई नहीं जो जानता हो। বাবা বলছেন যে সত্যযুগে ত্রেতা যুগে কিভাবে রাজবংশ চলেছে, কিভাবে ত্রেতা যুগে রাজা রামের 12টা বংশ চলল, আর সত্যযুগে কৃষ্ণের নারায়ণের 8টা বংশ চলল। তো এসব এখন তোমরা ভালো করে জানো। तुम्हारे पास भी आगे यह नॉलेज रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नहीं थी। गोया नास्तिक थे, नहीं जानते थे। नास्तिक बनने से कितना दुखी बन जाते हैं। अब तुम यहाँ आए हो यह देवता बनने, वहाँ कितने सुख होंगे। देवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। বলছে দেবী গুণ এখানেই ধারণ করতে হবে, যেহেতু তোমরা এখন দেবী দেবতা হতে যাচ্ছ। তো সত্যযুগে তোমাদের কত সুখ থাকবে। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद भाई बहन ठहरे ना, तो क्रिमिनल दृष्टि नहीं जानी चाहिए, इसमें है मेहनत। आँखें बड़ी क्रिमिनल है, सब अंगों से क्रिमिनल है आँखें। বলছে সমস্ত ইন্দ্রিয় থেকে সবথেকে ক্রিমিনাল হচ্ছে চোখ। চোখ যা দেখে সেই অনুসার তার প্রলোভন জেগে যায়। आधा कल्प क्रिमिनल, आधा कल्प सिविल बनती है। सतयुग में क्रिमिनल नहीं रहती। বলছে সত্যযুগে ত্রেতা যুগে চোখ ক্রিমিনাল থাকবে না, आँखें क्रिमिनल है तो असुर कहलाते हैं। बाप खुद कहते हैं
मैं पतित दुनिया में आता हूँ। जो पतित बने हैं उनको ही पावन बनना है। मनुष्य तो कहते हैं, यह अपने को भगवान कहलाते हैं। झाड़ में देखो, एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है, वही फिर तपस्या कर रहे हैं। বা বলছেন যে কল্পবৃক্ষের ব্রহ্মার চিত্র আছে, যে একদম কল্পবৃক্ষের শেষে ব্রহ্মা বাবা দাঁড়িয়ে আছেন, বা কল্পবৃক্ষের মূল শিকড়েও ব্রহ্মা বাবাকে দেখানো হয়েছে বসা অবস্থায়। তো মানুষ ভাবে যে এরা ব্রহ্মাকেই ভগবান মানে। তো বাবা বলছেন যে তাদেরকে বোঝাও যে ব্রহ্মাকে ভগবান মানা হয় না, কিন্তু ব্রহ্মার দ্বারা নতুন সৃষ্টি রচনা হয়, এবং সেই ব্রহ্মা আবার 84 জন্মের পরে কল্পের শেষে আবার সাধারণ তনে আসছেন, অর্থাৎ প্রজাপিতা ব্রহ্মা হচ্ছেন। তো কল্পের পূর্বেও উনি ছিলেন, কল্পের শেষেও উনি আছেন। তো এটাকে বোঝাতে হবে। তো মানুষ না বুঝেই বলে যে এনারা ব্রহ্মাকে ভগবান মানে। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी चलती है। संवत भी लक्ष्मी नारायण से गिना जाएगा। इसलिए बाबा कहते, लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हो तो लिखो, इससे 1250 वर्ष के बाद त्रेता। शास्त्रों में फिर लाखों वर्ष लिख दिए हैं। रात दिन का फर्क हो गया ना। ब्रह्मा की रात आधा कल्प, ब्रह्मा का दिन आधा कल्प। तो यह बातें बाप ही समझाते हैं। फिर भी कहते, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। उनको याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठ जाओ। सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे नहीं। বাবা বলবেন না মধুবনে যে সব বাচ্চারা থেকে যাও, কেন বাবা জানেন যে সবাই যদি মধুবনে বসে যায় তাহলে বাবার সেবা কি করে হবে। তো সার্ভিসেবল বাচ্চাদেরকে বাবা বলবেন যে তোমরা যাও, सेंटर खोलो, म्यूजियम खोलो, सेखाने सेवा करो। कितने को निमंत्रण बांटते हैं, आकर गॉडली बर्थ राइट, विश्व की बादशाही लो। तुम बाप के बच्चे हो, बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो तुमको भी स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए ना। बाप कहते हैं, मैं एक ही बार स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। एक ही दुनिया है जिनका चक्र फिरता रहता है। बाबा बोलছেন যে আমি একবারই আসি পৃথিবীতে এবং সারা কল্পের মধ্যে একবার এসে স্বর্গের স্থাপনা করি। আর এটাই একটা দুনিয়া, মানে পৃথিবীতেই হচ্ছে একমাত্র মনুষ্য জগৎ, আর অন্য কোনো গ্রহে নেই। এখানে 4টে যুগের চক্র ঘুরছে। मनुष्यों की तो अनेक मतें, अनेक बातें हैं, मत मतांतर कितने हैं, इसको कहा जाता है अद्वैत मत। झाड़ कितना बड़ा है, कितनी टाल टालियाँ निकलती हैं, कितने धर्म फैल रहे हैं। बाबा बोलছেন যে এখন কত মত মতান্তর আছে, পুরো বৃক্ষের অনেক শাখা প্রশাখা বেরিয়ে গেছে, বিভিন্ন ধর্মরূপী শাখা প্রশাখা। তো সত্যযুগে তো একই মত ছিল, একটা রাজ্য ছিল, আর এখন কত ধর্ম, কত মত, কত রাজ্য। सारे विश्व पर इनका राज्य था, यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म भोग कंगाल बने हैं। अभी तुम काल पर जीत पाते हो, वहाँ कभी अकाले मृत्यु होता नहीं। यहाँ तो देखो बैठे बैठे अकाले मृत्यु होती रहती है। বা বলছে যে সত্যযুগে কখনো অকাল মৃত্যু হবে না, কিন্তু এখানে তো বসে বসেই অকাল মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে। চারো তরফ মত হি মত হ্যায়। বাবা বলছেন চারিদিকে মৃত্যুর হাহাকার চলছে। वहाँ ऐसे नहीं होती, पूरी एज लाइफ होती है। বলছে সত্যযুগে পূর্ণ আয়ু থাকবে, 150 বছর পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষের পূর্ণ আয়ু থাকবে। भारत में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। 150 वर्ष एवरेज आयु थी। अभी कितनी आयु रहती है। ईश्वर ने तुमको योग सिखाया तो तुमको योगेश्वर कहते हैं, वहाँ थोड़े ही कहेंगे। इस समय तुम योगेश्वर हो, तुमको ईश्वर राजयोग सिखा रहे हैं।
फिर राज राजेश्वर बनना है। अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, फिर राजेश्वर अर्थात राजाओं का राजा बनेंगे। बाबूजी এখন তোমরা জ্ঞান জ্ঞানেশ্বর হচ্ছ, তারপরে সত্যযুগে রাজ রাজেশ্বর হবে। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज के धारणार मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, आँखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। बाबूजी चोख के सिविल बानानोर परिश्रम करो, बुद्धिते सब समय जेनो थाके जे आमरा प्रजापिता ब्रह्मार बच्चा भाई बोन। क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। बाबूजी क्रिमिनल दृष्टि राखो ना। 2 नंबर पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है। बेहद का सन्यासी बनना है। बाबूजी हदेर समस्त कथा छेड़े एक बेहदेर बाबा के स्मरण करते हबे, बेहदेर सन्यासी होते हबे। आजकेर वरदान, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। बाबूजी संगम जुगे अतीन्द्रिय सुखेर दोलनाय दोलो, एटाई होच्छे संगम जुगेर वरदान, एटाई होच्छे संगम जुगेर अलौकिक प्राप्ति। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। बाबूजी जे जेमन छोटो लाडला बाच्चादेरके की करा हय, मा बाबा दोलनाय दोलाय, तो ठीक बाबा बोलছেন कखनो देह अभिमाने एसो ना एवं এই অতীন্দ্রিয় সুখের দোলনা থেকে নেমে देहभान रूपी माटीते पा रेखो ना। बाबा बोलছেন जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। बाबूजी ऊँचू थेके ऊँचू बाबार स्वच्छ बाच्चा तोमरा सब समय अतीन्द्रिय सुखेर दोलनाय दुलबे, तोमरा माटीते पा राखतेई पारो ना। आजकेर स्लोगान होच्छे, मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। बाबूजी आमी जे खूब त्याग करेছি এই অহংকারটাও রাখা ঠিক না, তো এরও ত্যাগ করাই হচ্ছে সাচ্চা ত্যাগ। ओम शांति।